everyone, this is Priyanshi Chaudhary and welcome to my channel. In this video, we are going to cover the chapter Power Sharing of class 10th Civics. And I'm damn sure that after watching this video, you are going to get fully prepared for this chapter. So let's start it. So these are the following topics to be covered in this video, and according to it, our first topic is power sharing and majoritarianism. So first of all, I'll be telling what power sharing and majoritarianism is and what's the difference between both of them. So power sharing. Power sharing is the division of authority for better administration, or we can say that distribution of power among different sections of society. What I said was distribution of power among different sections of society. What it exactly means is that when we divide power between authorities, when we divide power between different sections of society for the better administration, for easy administration, it becomes power sharing. Easy? Fine. Next is majoritarianism. It is a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding wishes and needs of minority. इसका मतलब होता है कि जो majority community है वो अपने हिसाब से किसी भी country को rule कर सकती है. अगर किसी भी country में दो communities है जिसमें से एक बहुत ज़्यादा majority में है और दूसरी minority में है, तो majority community अपने हिसाब से country के rules को accommodate कर सकती है, अपने हिसाब से country को चला सकती है. हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये हो जाएगा a system that gives preference to interest and aspirations to the majority of population. A system that gives preference to the interest and aspirations of majority of population of the country. Okay, let's take an example कि एक country है जिसमें दो नाम के लोग रहते हैं. एक जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनका नाम ए से स्टार्ट होता है, लेटर ए से, और जो माइनॉरिटी है कंट्री की उनका नाम जो है वो लेटर बी से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटेरियनिज्म जो ए वाले हैं वो बी वालों को डोमिनेट कर सकते हैं. ए वाले अपनी विशेस अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो पूरी कंट्री है उसको रूल कर सकते हैं, जिसमें वो लोग माइनॉरिटी की विशेस को नीड्स को डिसरिगार्ड करेंगे, डिस्क्रेस करेंगे. Fine, I hope it is clear. If it is not, then you may leave a comment down. I'll definitely reply. Now our second topic is Belgium and all about Belgium. Okay, so first of all, I'd like to tell you about Belgium, that what Belgium is. It is a small country in Western Europe, and it is similar to the Haryana, which is a state in India. And its population is little over than 1 crore, and it shares boundaries with 4 countries, which is France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. On the map on your screen, you'll be noticing that Belgium is covered with 4 different countries. In the northern region, it is covered with Netherlands. In eastern part, it is covered with Germany. In southern part, I must say that southeastern part, it is covered with Luxembourg. And in the southwestern part, it is covered with France. Okay, so these were the 4 countries which share their boundary with Belgium, or Belgium shared its boundary with these 4 countries. Now, over here, the composition was such that Dutch speakers were in majority and French were in minority. Okay, so let me tell you the composition of Belgium. Belgium में 59% speaker were of Dutch, which used to live in Flemish region, and 40% people were of French, used to speak French, who used to live in Wallonia, and rest 1% were German speakers. Okay, you need to learn these composition. Okay, now one mark question which comes out from here is, what is Brussels? As Delhi is the capital of India, same as Brussels is the capital of Belgium. And one more question, that European headquarter was set in Belgium. ओके, यूरोपियन हेडक्वार्टर एक बार बेल्जियम में हुआ था, मतलब सेट हुआ था. बेल्जियम को एक बार यूरोपियन का हेडक्वार्टर बनाया गया था. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद कर लेना. ओके, इसके बाद हम कंपोजिशन इन ब्रुसेल्स के बारे में बात करते हैं. अगर हम देखिए कंट्री के ओवरऑल के बारे में बात करें तो डच स्पीकर्स वर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच वर इन माइनॉरिटी. डन. और अगर हम वहीं पर कंट्री की कैपिटल के बारे में बात करें तो फ्रेंच स्पीकर्स वर इन मेजॉरिटी एंड डच स्पीकर वन इन माइनॉरिटी. मतलब एक तरह से कहें तो जो पूरा सिनेरियो था वो बिल्कुल अपोजिट था. अगर कंट्री के बेसिस पे बात करें तो डच वर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच वर इन माइनॉरिटी, और जो मेन सिटी है जो बेल्जियम की मेन सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच वर इन मेजॉरिटी एंड डच वर इन माइनॉरिटी. ठीक है, इसके बाद बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम आई कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा सीवियर टेंशन क्रिएट हो गई. सो फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल. वो एजुकेटेड भी थे, वो रिच भी थे, वो पावरफुल भी थे, एंड दिस वॉज द ओनली थिंग विच वॉज डिसलाइक बाय डच. डच पीपल यूज टू थिंक यार ये तो माइनॉरिटी में है कंट्री में, इनके पास फिर भी जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुविधाएं हैं. जो मतलब क्योंकि ना डच वाले जो लोग थे इनको ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत बाद में मिली थी, और फ्रेंच ने इन सारी फैसिलिटीज़ को बहुत जल्दी गेन कर लिया था, और यही चीज़ थी जो डच को बिल्कुल पसंद नहीं थी. ठीक है, और यही था उन लोगों के बीच में टेंशन का कॉज. ओके, इसके बाद अब ये पढ़ेंगे हम कि बेल्जियम ने इसको कैसे अकोमोडेट किया, इस सब चीज़ को बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया. सो बेल्जियम ने क्या किया कि दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, amended constitution for 4 times between 1970 and 1993. इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने समझा कि रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. दे रिस्पेक्टेड ईच अदर्स फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एंड देन फॉर दैट दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 times between 1970 to 93. मतलब 23 ईयर्स के बीच में इन्होंने 4 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और इसका मेन एजेंडा था कि किसी भी इंटरेस्ट की, किसी भी कल्चर की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. इसीलिए इन्होंने 4 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था. आपको ईयर भी याद करने हैं. ठीक है, अब बेसिकली इन 4 अमेंडमेंट्स में इन लोगों ने किया क्या था. तो एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल,
तो पहली चीज़ थी सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। इन लोगों ने क्या किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच के मिनिस्टर्स और फ्रेंच के मिनिस्टर दोनों इक्वली अपॉइंट किए गए थे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में द नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स। सबसे पहली चीज़ इक्वालिटी प्रोवाइड करी। दूसरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई थी, या फिर कहें कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर जब स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं तो हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हुई थी वो थी सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स। वी कैन नॉट से कि बिल्कुल ही अलग गवर्नमेंट बन गई थी ब्रसेल्स में, पर जो ब्रसेल्स की गवर्नमेंट थी वो अपने अकॉर्डिंग ब्रसेल्स को हैंडल कर सकती थी। ये वाली जो गवर्नमेंट थी वो बन चुकी थी, और ब्रसेल्स की गवर्नमेंट में भी इक्वल मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए थे दोनों ही कम्युनिटीज़ से, ठीक है। चौथी चीज़ जो थी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो एक बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती है। जैसे कि फ्रेंच जो स्पीकिंग पीपल हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई और उनकी अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और डच स्पीकिंग पीपल की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और जर्मन स्पीकिंग पीपल की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो बेल्जियन मॉडल के एलिमेंट्स में आती हैं, ठीक है। बिफोर मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको पहले बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन दिखा देती हूँ। जो रेड वाला रीजन है वो है आपका वेलोनिया, और मैंने बताया था कि वेलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, ठीक है। और जो येलो वाला रीजन है आपका वो है फ्लेमिश रीजन, जहाँ पर आपके डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। और जो बीच में यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है ये ऑरेंज, जो सर्कल एन सर्कल किया है जो मैंने, वो है आपका ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है। सो यहाँ पर आपका बेल्जियम वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली लीव अ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज श्रीलंका एंड इट्स केस। तो बेसिकली व्हाट श्रीलंका इज, आपको अभी श्रीलंका का मैप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है जो कि सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में सिचुएटेड है। देखिए ये जो सदर्न कोस्ट है, यहाँ पे ये वाली जो स्टेट है वो है इंडिया की तमिलनाडु, और यहीं पर आपकी श्रीलंका सिचुएटेड है। तो ये एक आइलैंड नेशन है जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ है, ठीक है। तो बेल्जियम की तरह ही यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एथनिक और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन था, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो 74% पीपल यहाँ पर सिन्हाला बोलते थे। जैसे वहाँ पर मेजॉरिटी में डच बोलते थे लोग, वैसे ही यहाँ पर मेजॉरिटी में क्या बोलते थे, सिन्हाला। और माइनॉरिटी में क्या बोलते थे, कौन सी लैंग्वेज माइनॉरिटी में बोलते थे, दैट वाज तमिल लैंग्वेज विच वाज स्पोकन बाय 18% पीपल। अब तमिल लैंग्वेजेस में से, मतलब तमिल स्पीकर में से भी 2 टाइप्स के स्पीकर्स थे। पहले थे श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स 13% थे, और श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स थे जिनके फोर फादर जो है श्रीलंका के ही नेटिव मेंबर थे, ठीक है, नेटिव सिटीजन थे श्रीलंका के, वो हो गए श्रीलंकन तमिल्स। और इंडियन तमिल्स वो वाले तमिल्स हो गए जिनके फोर फादर्स इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में आए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो रिलीजन था वो था बुद्धिस्ट रिलीजन, जिसको 74% पीपल बोलते थे, या फिर कहीं कि सिन्हाला स्पीकर्स जितने भी थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद था हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो कि 18% थे और वो तमिल बोलते थे, और 7% जो बच्चे लोग थे वो थे क्रिश्चियंस जो कि सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे, ठीक है। अब आपको मैं श्रीलंका का मैप दिखा देती हूँ। ये देखिए, इट इज़ द मैप ऑफ श्रीलंका। तो ये हमेशा मतलब मार्क करने के लिए नहीं आता है, पर पूछ लिया जाता है कि श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रेस्ट करते हैं, इंडियन तमिल्स कहाँ रेस्ट करते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि जो ब्राउन वाला पार्ट है दैट इज़ योर इंडियन तमिल, this center part is your Indian Tamil, and this orange part over the north eastern side, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो पार्ट है ये है आपका श्रीलंकन तमिल्स, ओके। और सिन्हालीज है आपकी मेजॉरिटी में जो येलो पार्ट है, ओके। इसके बाद अब व्हाट वाज द बेसिक प्रॉब्लम इन श्रीलंका जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर तक की नौबत आ गई, दैट आई विल बी टेलिंग लेटर ऑन कि सिविल वॉर कब हुआ था, कि कैसे हुआ था, पर मैं अभी प्रॉब्लम बता देती हूँ। प्रॉब्लम थी श्रीलंका की कि श्रीलंका फॉलोड मेजॉरिटेरियनिज्म। एज आई टोल्ड, मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में मैंने बताया था आपको। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अपने हिसाब से कंट्री को रूल कर सकती है, ये होती है मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। और श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया था, और मेजॉरिटी में यहाँ पर सिन्हाला या फिर कहें बुद्धिस्ट रिलीजन था और सिन्हाला स्पीकर्स थे, ठीक है। तो क्या किया कि सिन्हाला लीडर्स ने गवर्नमेंट को डोमिनेट कर लिया। उसके बाद जब डोमिनेशन गवर्नमेंट में सिन्हाला का हो गया तो सिन्हाला की क्या हुआ, सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई।
तमिल को इन लोगों ने एज ए इन्फेरियर और सिन्हाला को एज ए सुपीरियर इन लोगों ने क्या हुआ, रिकॉग्नाइज कर दिया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो मेन 3 चीज़ें करनी थी सिन्हाला गवर्नमेंट ने, वो थी कि इन लोगों ने सिन्हाला को ऑफिशियल, नॉट ओनली ऑफिशियल बट दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था 1956 में। दूसरी चीज़ जो इन लोगों ने की थी वो थी कि जॉब्स और एजुकेशन, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी और यूनिवर्सिटी की सीट्स थी, उन सब में जो है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल या फिर बुद्धिस्ट लोगों को अलग से ही जो है रिजर्व सीट्स मिलती थी, इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। और इन लोगों ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें दे स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिस्ट। सबसे बड़ी बात जो की थी उन्होंने वो यही लाइन थी कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिस्ट। इन लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को ये प्रॉमिस किया कि स्टेट यानी कि श्रीलंका शैल प्रोटेक्ट यानी कि बचाएगा एंड फॉस्टर बुद्धिस्ट। फॉस्टर मतलब फैलाएगा, मतलब कि स्टेट जो है बुद्धिस्ट रिलीजन जो है उसको बचाने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी करेगा। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि सिन्हाला सुप्रीमेसी जब इस्टेब्लिश हुई थी तो उन लोगों ने कौन सी 3 चीज़ें करी थी। पहली, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, कौन सा ईयर में, 1956 में। दूसरी, जॉब्स और एजुकेशन में इन लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। और तीसरी चीज़ें थी स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिस्ट, ये इन लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिपुलेट कर दिया था। ठीक है, अब जब इन लोगों ने इतना सब कुछ सिन्हाला के लिए किया तो वहाँ पर तमिल कम्युनिटी भी तो रहती थी। तमिल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन हुआ वो हम देखते हैं। तमिल कम्युनिटी, अब जब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, तो तमिल ने भी डिमांड की, तमिल ने 3 चीज़ों की डिमांड की। वो थी कि हमारी जो तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। जब सिन्हाला ऑफिशियल हो सकती है तो तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं हो सकती? पहली चीज़ थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। दूसरी चीज़ थी इन्होंने जो डिमांड करी वो थी रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हमें मतलब तमिल्स को एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया दे दो जहाँ पर हम अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट को चला सकें, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवा सकें। ठीक है, तीसरी चीज़ थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जॉब और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ सिन्हाली लोगों को मिल रही हैं वो आप तमिल को भी दो। ये 3 डिमांड तमिल्स ने की थी और 3 ही चेंजेस सिन्हाला ने किए थे। ठीक है, जब ये 3 चीज़ें उन लोगों ने सिन्हालीज गवर्नमेंट के सामने रखी तो गवर्नमेंट ने इनको टोटली इग्नोर किया, जिसने तमिल्स के अंदर फीलिंग ऑफ एलियनेशन को डेवलप किया। एलियनेशन का मतलब, फीलिंग ऑफ एलियनेशन से मतलब सिर्फ ये है कि एक मतलब भेदभाव वाली भावना को उनके अंदर डेवलप किया और जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर मतलब जब आम जनता जो होती है, सिटीजन जो होती है एक भी कंट्री की, वो आपस में लड़ने लगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सिविल वॉर। जिसके चलते श्रीलंका को बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का जो है मतलब डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे गए। और जो सिविल वॉर था दैट एंडेड इन 2009। ओके, और मैं एक मेन चीज़ और आपको बता दूं, ये 1 मार्क क्वेश्चन में बनता है दैट इन विच ईयर श्रीलंका वॉज इंडिपेंडेंट। तो श्रीलंका 1948 में, मतलब सिर्फ इंडिया के 1 साल बाद ही श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, तो ये थी आपकी श्रीलंका की। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो मैं दोबारा कहूँगी प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी मैं मोटिवेट होंगी और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है कंक्लूजन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंकाज केस। बेल्जियम ने किस तरह से हैंडल किया इस सबको और श्रीलंका ने कैसे हैंडल किया, क्योंकि केस दोनों में सेम थे। 2 कम्युनिटीज़ थी और मेजॉरिटी माइनॉरिटी का चक्कर था, मतलब सब कुछ सेम था, पर हैंडल करने के जो तरीके थे वो बिल्कुल अलग थे। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन लोगों ने समझा कि अगर कंट्री की यूनिटी को बनाना है तो वो तभी बन पाएगी जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे। जिसके बाद दे म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट्स फॉर पावर शेयरिंग। इन लोगों ने पावर शेयरिंग को सपोर्ट किया, जबकि श्रीलंका ने किसको सपोर्ट किया, मेजॉरिटेरियनिज्म को, जिसके चलते उनकी यूनिटी गॉट क्रिपल्ड और जिसकी वजह से मेजॉरिटी ने डोमिनेट किया और माइनॉरिटी के साथ कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, पावर शेयर करने से रिफ्यूज़ कर दिया। ओके, तो बेसिकली अगर इनकी कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को सपोर्ट किया, इसकी वजह से उसे वो सब नहीं देखना पड़ा जो श्रीलंका को फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ईच कम्युनिटी शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड, ईच लैंग्वेज शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड एंड मेजॉरिटी शुड नॉट सप्रेस माइनॉरिटी। ओके, नाउ आवर 5th टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं इस चैप्टर में कि पूरा चैप्टर बना दिया उसके नाम पे, पर ये तो बताया नहीं पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड वन इज मॉरल रीजन। ओके, प्रूडेंशियल रीजन क्या हो गया आपका, प्रूडेंशियल कहें या फिर लॉजिक रीजन कहें, सेम थिंग। ओके, प्रूडेंशियल रीजन है आपका कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब हम लॉजिकली किसी चीज़ को समझेंगे तो ऑब्वियसली उससे हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिड्यूस होंगे, कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो टेंशन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगी और जिसके चलते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी कंट्री में आ जाएगी। दूसरी चीज़ है आपकी मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है कि पावर शेयरिंग जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेट है तो उसको पावर शेयर करनी ही चाहिए, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी।
Now our sixth and last topic, that is that is forms of power sharing. Okay, so सिर्फ पावर शेयरिंग हम एक तरीके से नहीं बल्कि बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं. जैसे पहली है हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को तीन बोले तो सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहली है लेजिस्लेचर, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी है जुडिशरी. लेजिस्लेचर वो जो लॉज फॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो लॉज को इंप्लीमेंट करवाते हैं, और जुडिशरी वो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम चेक करते हैं. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के सबॉर्डिनेट काम करते हैं, जबकि जुडिशरी किसी के भी सबॉर्डिनेट काम नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है. इस सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंस मेथड भी बोलते हैं. तो दूसरा है हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग. ठीक है, इसमें हम डिफरेंट लेवल्स या फिर कहीं डिफरेंट टीयर्स में गवर्नमेंट को जो है डिवाइड कर देते हैं. जैसे पहला हो गया यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर दूसरा यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट. इस सिस्टम को फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं. तीसरी चीज़ है आपकी अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. हम सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर को डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कहीं पे हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी, जॉब्स में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी, एजुकेशन में दे दी. तो ये हम इस तरीके से सोशल ग्रुप्स के बीच में जो है पावर को डिवाइड कर सकते हैं. और चौथी चीज़ है आपकी अमंग पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. पार्टीज में हम कैसे कर सकते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बना के. कोलिजन गवर्नमेंट वो होती है, देखो जब पावर मतलब जब कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी नहीं बना पाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि आगे चल के रूल करेगी, जिनके दोनों के वोट्स मिलके मतलब फिर आगे चल के रूल करेगी. तो उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट. तो इसमें जो भी पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकती हैं, और दोनों ही पार्टीज का पूरी जो कोलिजन गवर्नमेंट बनी है उसमें बराबर की हिस्सेदारी होती है. ठीक है, दूसरे हैं प्रेशर ग्रुप्स. हम इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इन सब के बीच में जब पावर को डिवाइड कर देते हैं ना, तो हम पावर को प्रेशर ग्रुप्स में भी इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. इन सब के बारे में आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ना है. अभी आप इतना ही पढ़ो. सो अब आपने देखा कि हमने पावर शेयरिंग जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. मैंने बताया था पहले पावर शेयरिंग और मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है. फिर हमने बेल्जियम के बारे में बात करी, उसके केस की और उसने कैसे उसको हैंडल किया, वो सब पढ़ा हमने. उसके बाद श्रीलंका के बारे में बात की कि श्रीलंका ने कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया, जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हुआ. उसके बाद हमने दोनों केसेस से कंक्लूजन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने रीजंस वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, जिसके दो रीजन होते हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन. और उसके बाद हमने 4 पढ़े फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस. होप यू लाइक माय वीडियो. अगर आपको पूरा समझ में आया हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ और शॉर्ट वीडियोस लाती रहूँ बेसिकली. सो इसकी जो ये पीडीएफ थी, आपको नोट्स की पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो बाय गाइस.